Now, today's our topic is different types of houses. That is chapter number 13 from Environmental Studies of class 5th. As it is clear from the topic, different type of houses. You know that houses we made, they have different structures. So it depends on the climate and weather of a particular place. As you know, in mountain areas there are different type of houses. In plain area there are different type of houses, and in coastal areas the structure of houses is different. We have first climate conditions on which the structure of house depends. So first of all, in cold places, people generally made houses with sloping rooftops. These sloping rooftops allow the snow to slide down, which saves the house to become damp and cold. इससे क्या होता है कि जो स्लाइडिंग हाउस होते हैं उसमें से बर्फ स्लाइड करके नीचे गिर जाती है, उससे हमारे जो घर होते हैं ना तो अंदर ज्यादा ठंड होती है और उसमें सीलन भी नहीं पड़ती. डैम्पिंग मतलब सीलन, ठीक है, वहां पे सीलन भी ज्यादा नहीं होती. नेक्स्ट इज these type of houses are found in mountain areas like Shimla, Tibet. यहाँ पे बहुत पहाड़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये हाउसेस आपको मिल जाएंगे. हॉट प्लेसेस, एट हॉट प्लेसेस जैसे प्लेन एरियाज है या फिर जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे जो हाउस बनते हैं, the houses made of bricks and stones. तो वहाँ के जो हाउस बने होते हैं वो ब्रिक्स और स्टोन से मिलकर बने होते हैं. The walls are generally thick walls keeps the home cool. तो जितनी ज्यादा मोटी दीवार होगी उतना ही हाउस क्या होगा, ठंडा रहेगा. So इनके जो rooftops होते हैं, rooftops are generally flat. These are used as terraces. So their terraces are used for drying clothes and for sleeping and many other purposes. So next is places that receive heavy rainfall. ये दो तो ऐसे हो गए जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे कैसे कैसे हाउसेस के स्ट्रक्चर होते हैं. Now students, there are places that receive heavy rainfall. ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहाँ पे हाउसेस की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है. In such places, houses are made often built on these sets of wooden posts called stilts. लकड़ी की जो लेग्स होती हैं उस पे एक जो मकान है वो बनाया होता है, ठीक है. So such houses saves us from the dangerous animals and the floods. Generally ladder is used to enter the house, and this ladder is removed in the night for the safety. And the rooftops of these houses generally slopy, ठीक है. तो रूफटॉप्स जो होती हैं इनकी, that is generally slopy, वो भी थोड़ी स्लोप ताकि उसमें पानी जो है ऊपर इकट्ठा ना हो, वो स्लाइड कर जाए पानी नीचे. So these houses are made at such places where it rains heavily and land keeps getting flooded. So in these areas we make such houses that are wooden houses and the rooftops are slopy, so that to avoid the water collection on the roof. So students, in types of houses we have read about the climatic conditions on which house is made, available material. Now second is available material. कुछ हाउसेस ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे किसी चीज की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, they found in abundant. तो ऐसी जगह पे जो वहाँ में अवेलेबल मटेरियल है उसी को यूज करके हम अपना जो हाउस है वो बना सकते हैं. सो इन अवेलेबल मटेरियल जैसे वुड हो गया या स्टोन हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे जो हिली एरियाज होते हैं या फिर बहुत ही फॉरेस्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट घने जंगल होते हैं, तो वहाँ पे लकड़ी ज्यादा होती है, तो दे यूज दिस वुड टू मेक देयर हाउसेस. एंड इन प्लेसेस वेयर स्टोन्स आर in abundant, they use stones to make their houses.
Now third is landforms. So landforms में सबसे पहले है igloos. Igloos क्या होते हैं? What are igloos? They are houses made from snow. Snow से बने हुए घर होते हैं. They are dome shaped and they are found in polar regions. These are used by Eskimos, जो पहले ही वहाँ पे रहते हैं, जो पोलर एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं एस्किमोस. नेक्स्ट इज हाउस बोट. हाउस बोट क्या होता है? इट इज these are house made boats. These floats on the lakes. Generally in India we have these house boats in Kashmir that floats on lake in Dal Lake. तो आपने सुना होगा जो हमारी डल लेक है वहाँ पे काफ़ी सारी हाउस बोट चलती हैं, तो वो टूरिज्म के लिए भी एक मतलब लोगों के लिए टूरिज्म का सोर्स है, ठीक है, वो इनकम का सोर्स है. वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. दे यूज टू राइड इन हाउस बोट्स एंड दे पे फॉर इट. नेक्स्ट इज नीड्स. कुछ हाउस हम नीड के बेसिस पे बनाते हैं. दीज आर द टेम्परेरी हाउसेस लाइक कैरावन. कैरावन क्या होती है? कैरावन एक तरह का मूवेबल हाउस होता है. दिस इज पुल्ड बाय द इंजन और ए एनिमल. तो इसमें सारा जो सामान जैसे घर में होता है वैसे ही इसमें सारा कुछ होता है. किचन, बाथरूम, रूम्स, बेडरूम्स, सब कुछ इसमें होता है. इट इज कैरावन, ठीक है. इट इज पुल्ड बाय कार इंजन और एनिमल्स. इट इज डिजाइन फॉर पीपल टू लिव एंड स्लीप इन. इसमें आप रह सकते हो और सो भी सकते हो. नेक्स्ट इज टेंट. टेंट इज अनदर टेम्परेरी हाउस. इट इज यूज्ड बाय द माउंटेनियर्स, सोल्जर्स, स्काउट्स एटसेट्रा. ये एक टेम्परेरी हाउस है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो. इट इज मेड ऑफ कैनवस. कैनवस से बनी जो जिसको हम तरपोलिन बोलते हैं उसका हम यूज करते हैं टेंट बनाने के लिए. ये एक टेम्परेरी हाउस है, आप कहीं पे भी इसको बना सकते हो for temporary purpose. So students, there are other types of houses that depends on available space. तो अगर आप थोड़ा पीछे देखो 10-20 साल पहले जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे स्पेस ज़्यादा अवेलेबल होती है वहाँ पे जो घर बने होते थे that is of बंगलो टाइप. वो एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती थी. एक बहुत बड़ा मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जगह जो स्पेस है वो कवर कर लेते थे. लेकिन आजकल क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, स्पेस कम हो गई है, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों में जो लोग हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है, ठीक है. तो लोगों के रहने के लिए और स्पेस की कमी की वजह से आजकल बंगलों की बजाय टॉल बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं, ठीक है. टॉल बिल्डिंग्स में दीज आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. हर फ्लोर पे काफी सारे घर होते हैं और इन घर को हम अपार्टमेंट बोलते हैं या फिर फ्लैट बोलते हैं, ठीक है. तो पीपल यूज टू लिव इन दैट फ्लैट्स. क्योंकि ये एक स्पेस की कमी की वजह से ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आजकल बन रही हैं. उसके बाद एक तो अवेलेबल स्पेस हो गई कि अगर स्पेस ज्यादा है तो आप एक बहुत बड़ा घर जो बिल्कुल स्पेसी हो उसको आप बना सकते हो. और स्पेस की कमी की वजह से आजकल जो बन रही है टॉल बिल्डिंग्स जिनको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें अपार्टमेंट और फ्लैट्स होते हैं. एक तो वो हो गया. दूसरा है हमारे पास हाउसेस दैट आर इकोनॉमिकल एंड एट चीपर रेट फॉर कंस्ट्रक्शन. तो सब लोगों की इनकम एक जैसी नहीं होती. कुछ लोग सम पीपल आर रिच एंड सम आर पुअर, ठीक है. तो उसके बेसिस पे जो बेचारे गरीब लोग हैं वो एक ऐसे हाउसेस बनाते हैं दैट इज कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउसेस इज मेड अप ऑफ क्ले, स्ट्रो, मड एटसेट्रा. तो वो उनकी जो रूफ होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रोज दैट इज कॉल्ड थैच्ड हट. इसको हम थैच्ड हट बोलते हैं, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं, जिसको पंजाबी में कह देते हैं छान. पुराने में बोलते थे छान पाई हुई है, ठीक है. दैट इज मेड अप ऑफ मड, क्ले एंड स्ट्रोज. तो इसकी जो छत होती है वो भी किससे बनी होती है? फ्रॉम स्ट्रोज. नेक्स्ट इज पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, सैंड एटसेट्रा. दीज जो हमारे जो कच्चा हाउसेस है दे डिमांड रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इन पक्का हाउसेस दे डू नॉट
डिमांड रिपेयर टाइम टू टाइम, तो उनमें स्पेस ज़्यादा, आप स्पेस कम या ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है, तो आपको उसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ जो रिच पीपल है वो पक्का हाउसेस बना लेते हैं, जो पुअर पीपल है वो अपने जो होते हैं कच्चा हाउसेस में ही रहते हैं। A chawl consists of rows of one-room houses. The cost of constructing houses in chawl is not very high. Chawls are built in densely populated areas where not much space is available. तो आपने ये फिल्मों में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि चौल जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया होता है वो। So students, this chapter is done. So you have to do the exercise of this chapter that will be sent to you in the form of PDF. तो आप जब आपके पास वो PDF फाइल आएगी तो आप उसको सोल्व करके you will send it through the email ID, not on the WhatsApp. You have to send it on through email ID, ठीक है। तो आपको मेरी email ID मिल जाएगी, तो आप इस जितने भी आपकी असाइनमेंट्स हैं वो आपको मुझे ईमेल आईडी के थ्रू भेजनी है। उसमें आपने अपना नेम, रोल नंबर, क्लास, चैप्टर नेम, ये सारी चीज़ें लिखनी है, तब उसको आपने फिर मुझे वो अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज डन, थैंक यू।